Good morning, dear students. Today we begin with the second topic. First is origin of life, that theories which are related to the origin of life. Now, what are the evidence for evolution? So, evidence for evolution that are they are of different type. Number one, that is paleontological evidence, then morphological and anatomical evidences, biogeographical evidences, it is another name is adaptive radiation, biochemical evidences, embryological evidences for evolution by the natural selection. So now we'll discuss it one by one. First is paleontological evidences. Okay, so सबसे पहले paleontology. What is paleontology? It is the study of fossil. ठीक है, fossils को लेकर, fossil means remain of the animals or plants dead so many year ago, and these fossils are the remnant of life form. Life form मतलब plants or animal found in the rock. Okay, so fossils are written document of the evolution. These are the written document of evolution. So to study phylogeny, evolutionary history. Phylogeny क्या होता है? Evolutionary history or race history. For example, horse evolution. See here. Okay. So ये modern horse है. Here. ये 10 million year ago ये ऐसा था. Okay. फिर जो ये है मैमथ, इसका भी जो है एशियन एलिफेंट. तो फॉसिल्स से हम जो है इसका पता लगा सकते हैं कि कितने साल पहले जो है ये ओरिजिन हुआ इनका, या क्या एवोल्यूशन जो हुआ इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितने ईयर्स उसको लगे. Next is to study the phylogeny, evolutionary history or that race history, horse evolution. To study the मतलब these are the significance of this fossils is to study the connecting link between two group of organism. For example, Archaeopteryx, connecting link between reptiles and birds. आप देखिए इसके ये देख सकते हैं आप, these are the fossils and these are the weather हैं, तो they are having the that are birds. ठीक है, तो reptiles भी हैं कि दे लॉन्ग टेल है विद मैनी वर्टिब्रे, तो रेप्टिलियन करेक्टर आ गया इसके अंदर. विंग्स जो है, क्लॉज हैं विंग्स के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो रेप्टिलियन करेक्टर. टूथिक बीक है, रेप्टिलियन करेक्टर आ गया, और विंग्स हैं. ओके, सो दीज आर द एवियन करेक्टर. एवियन मतलब बर्ड्स का करेक्टर आ गया. सो कनेक्टिंग लिंक हो गया कि दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेप्टिलिया एज वेल एज द बर्ड्स. टू स्टडी अबाउट द एक्सटिंक्ट एनिमल, जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लाइक डायनासोर, उनकी फॉसिल से वी कैन स्टडी कि कितने साल पहले इनका ओरिजिन हुआ और कब जो हैं ये एक्सटिंक्ट हुए. दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ fossils. Last is to study about geological period by analyzing the fossils in sedimentary rock layer. Rock layer में sediments में जो हैं fossils को लेकर वहाँ पर geological period किस period में, particular period में वो आए. The study showed that life form varied over time and certain life form are restricted to certain geological lifespan. ठीक है. So next evidence is morphological and anatomical evidence. Comparative anatomical and morphological. पता है आपको anatomic जो है internal structure है, morphological external structure है. Shows that different form of animals have some common structural feature. This can be explained as follow. So there are two type of organs, होमोलोगस ऑर्गन एंड होमोलॉजी. स्टडी को बोलते हैं होमोलॉजी, होमोलोगस ऑर्गन्स की. नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉजी. क्लियर. सो फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. होमोलोगस ऑर्गन, द ऑर्गन हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट फंक्शन डिफरेंटली. क्लियर. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द होमोलॉजी. फिर प्रोसेस इज नोन एज द होमोलॉजीज. और ऑर्गन क्या है? सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर. आप देख सकते हो सिमिलैरिटी जो है स्ट्रक्चर में है. ओके, बट फंक्शन इज डिफरेंट हियर. ओके, सो होमोलोगस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैंड, वेल्स फ्लिपर, बैट्स विंग एंड चीताज फूट. ठीक है, ये आप देख सकते हो. मैन का है जो है हैंड, और उसके बाद चीता, सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. दिस इज सेम. क्लियर. बट
these forelimb have different function but similar anatomical feature. Anatomical मतलब internal bones वगैरह, 2 joint है, ये सारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ये कार्पल बोन्स है, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, फिंगर्स की बोन है, सब सेम है, ठीक है. बट जो होमोलॉजी फंक्शन जो है आप देख सकते हैं, वेल के, ह्यूमन के हैंड का क्या फंक्शन है, चीता के जो है फुट का फंक्शन कर रहा है चीता में, तो बैट्स में विंग्स का फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शनली दे आर डिफरेंट, ठीक है. तो होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन इन द हार्ट एंड ब्रेन. क्लियर. हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट आप देख सकते हो, फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टिलिया है, बर्ड्स है, और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरली सेम है. ओके. सो ऐसे ही जो है ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स आप देख सकते हो. क्लियर. सो दीज आर द होमोलोगस organs, structurally same, functionally different. So homology in plants also seen thorns and tendril of bougainvillea and cucurbita. ठीक है. thorns, clear, ये आप देख सकते हो, these are the tendril. clear. तो these are the bougainvillea and cucurbita. Origin of homologous organ is due to divergent evolution. What is divergent evolution? Is the evolution by which related species become less similar to survive and adapt in different environmental condition. Clear. Homology indicators common ancestry. Clear. मतलब divergent evolution क्या होता है, जहाँ पे जो जितनी भी related species हैं become less similar to survive and adapt in different environmental condition. Clear. So and now we start analogous organs, the organ having similar function but different structure, okay, and origin. This is known as the analogy. तो इसमें आप देख सकते हो wings of insect, clear, and wings of bird, clear, formed of a thin flap of chitin. चीटिंग की एक लेयर होती है इसके ऊपर, विंग्स के ऊपर, और मॉडिफाइड 4 लिम्स है, ठीक है. बर्ड्स के अंदर 4 लिम्स है और इंसेक्ट के ऊपर चीटिंग की लेयर होती है, ठीक है. तो लेकिन फंक्शनली जो है विंग्स ऑफ इंसेक्ट और जो इंसेक्ट ऑफ दैट इज डिफरेंट. आइज ऑफ ऑक्टोपस, रेटिना फ्रॉम द, स्ट्रक्चरली आप देख सकते हैं कि रेटिना फ्रॉम द स्किन, एंड द मैमल्स रेटिना फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्रेन, ये आप देख सकते हैं. फंक्शनली जो है दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट. फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन, क्लियर, स्ट्रक्चर ओके एंड फंक्शन सेम. स्वीट प्लांट्स में भी देख लेते हैं एक बार. स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है और इसमें मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, बट फंक्शन एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड. एग्जाम्पल, ट्रैकिया ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम एक्टोडर्म एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रे फ्रॉम एंडोडर्म, ठीक है. ड्यूरिंग एम्ब्रियो जो बनता है एंडोडर्म से बनता है लंग्स वर्टिब्रेट्स में, और ट्रैकिया जो है एक्टोडर्म से बनता है. So origin of analogous organ is due to convergent of evolution. What is convergent evolution? Example of the convergent evolution given here: fish, land reptile, land mammals are unrelated, but they evolved to more similar form. Clear? Convergent evolution is evolution by which unrelated species, उसमें क्या था, related species, अनरिलेटेड स्पीशीज है. आप देखिए फिश बिल्कुल डिफरेंट है, पाइसियन में आती है, रेप्टाइल में आते हैं, ये मैमल्स में आते हैं, क्लियर, बट दे इवॉल्व टू मोर सेम सिमिलर फॉर्म, क्लियर. तो बिकम मोर सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन सिमिलर कंडीशन, क्लियर. सो नेक्स्ट इज बायोकेमिकल एविडेंस. Organism show similarities in protein, gene, other biomolecule and metabolism. It indicate common ancestry. तो आप देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल, DNA, RNA, वही सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, सब में सेम हो रहा है. सिमिलैरिटीज इन दियर प्रोटीन, जीन, ओके, मतलब दे इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्रीज. बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, और इट इज नोन एज द अडेप्टिव रेडिएशन. Adaptive radiation evolution. By adaptive radiation is the evolution of different species in a geographical area.
starting from a point. For example, Darwin's finches in the Galapagos Island. मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ लेकिन डिफरेंट इन अ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में शो कर रहा है इसमें. So adaptive radiation is the evolution of different species in a geographical area. Second, Darwin finches in Galapagos Island. और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स रेडिएशन. ओके, ये आप देख सकते हैं एक पॉइंट है और कितने सारे ऑर्गेनिज्म, बट दे आर लिविंग इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया. क्लियर. प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया. क्लियर. सो प्लेसेंटल, ये सारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं. ओके, इन ऑस्ट्रेलिया. So when more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it is result in convergent evolution. अगर one adaptive radiation is appeared, more than one adaptive radiation is appeared and in an geographical area. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल दोनों अगर एक ही एरिया में फाउंड हो रहे हैं तो दैट रिजल्ट इन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो ये प्लेसेंटल मैमल आप देख रहे हो गिवन है और इधर जो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स है, अगर ये एक ही एरिया में जियोग्राफिकल एरिया में मतलब मोर देन वन फाउंड हो रहे हैं तो दिस इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दैट विल डू नेक्स्ट टाइम.